جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ السلام رہی ہے آپ علیکم کو؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ٹیکنیکل گڑبڑی کی وجہ سے یہ آواز آنا بند ہو گئی تھی. جی چلیے ہم پھر سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم خیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنا ربی زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب زدنی علما. ہاں تو دیکھیے ہم لوگوں کی کتنی تختیاں مکمل ہو گئی تھیں، پتہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 19. الحمدللہ الحمدللہ 19 تختیاں ہماری مکمل ہو گئی تھیں اور آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی سب. جی الحمدللہ. تو ہم انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں. ہم پڑھیں گے اب تختی نمبر 20. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی یہاں پہ ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان کو نوٹ کر کے رکھنا ہے آپ کو. ایگزام میں تیاری کے لیے آسانی رہے گی آپ لوگوں کو. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پڑھ کے سمجھ کے اور بس ہو جائیں بے فکر، پھر بس جب ایگزام ہوں گے تو پھر ہم پریشان ہوتے پھریں گے. اس لیے ہم کو پہلے سے اپنی تیاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ لکھ کر رکھنا ساری چیز جو آپ کو سمجھائی جائے. ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 20 کی طرف آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 20 ہے تشدید بعد حرف مد. آ رہے سمجھ میں آپ کے؟ تختی نمبر 20 ہے السلام تشدید. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ابھی جوائن ہوئے ہیں سیدہ نکی اٹینڈنس جی لگا دیجیے. ہاں ابھی میں نے اٹینڈنس اس لیے لی نہیں تھی کہ شروع میں لوگ کم ہوتے ہیں تو تھوڑا سا رک کر لوں گی انشاءاللہ، ہے نا؟ تو جی جی ٹھیک. دیکھیں ہاں تو میں نے شروع کر دی ہے. پہلی جو ہماری 19 تختیاں ہو گئی ہیں تو یہ 2 تختیاں ایسی ہیں صرف آپ کو سمجھنا ہے جو میں نے مد متصل، مد منفصل اور مد لازم جو سمجھائی تھی یہ وہی ہیں. ان کو تھوڑا سا سمجھ کے بس آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم تختی نمبر 20 پڑھ رہے ہیں تشدید بعد حرف مد. تشدید کے بعد حرف مد آتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو، ہے نا؟ تو یہ دیکھیے پہلے سب سے پہلے تشدید بعد حرف مد یہ والی لائن ہم کیا ہو رہا ہے اسے یہ ہاں یہ والی لائن ہم تشدید بعد حرف مد یہ ہے یہاں پر یہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہے والا حرف دیکھیں. ٹھیک ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ضاد پر تشدید ہے، ضاد پر تشدید ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ حرف مد ہے. الف کے اوپر مد لگا ہے نا؟ جی تشدید ہے پہلے ضاد پر تشدید لگی ہے اور ضالین لکھا ہے. ضالین میں پھر ضاد کے بعد الف پر مد ہے.
यहाँ मद्दे कौन सा हो रहा है? लाजिम, मद्दे लाजिम हो रहा है। माशाल्लाह। समझ गए आप, ये मद्दे लाजिम हो रहा है। तशदीद बाद हुर्फे मद, तो हुर्फे मद तशदीद है पहले द्वात पर, फिर अलीफ पर मद है। तो यहाँ पर तशदीद बाद हुर्फे मद है, तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे? मद्दे लाजिम हो रहा है तो जाहिर मद्दे लाजिम है हो रहा है, तो हुर्फे मद के बाद तशदीद या जज़म होती है, तो यहाँ पर क्या है? मद्दे लाजिम। नहीं, मद्दे लाजिम हो रहा है। अगर मद्दे लाजिम तो मद्दे लाजिम तो हो रहा है, लेकिन किस तरह होता है थोड़ा सा बताएं यहाँ पर। यहाँ पे हुर्फे मद, हुरूफ़े मद्दा के बाद में तस्दीद आ रही है। यही माशाल्लाह। तो देखिए हुर्फे मद के बाद तशदीद या जज़म होना जरूरी होता है, तो ही मद्दे लाजिम होता है। तो बस इस चीज का ध्यान रखें। ये तो तशदीद बाद हुर्फे मद बताया है, यहाँ पे तशदीद है द्वात पे, हुर्फ उसके बाद हुर्फे मद है। लेकिन मद्दे लाजिम जब होगा तो हुर्फे मद के बाद तशदीद या जज़म होगा, तो यहाँ पर क्या है? तशदीद। तस्दीद है। तस्दीद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह समझ में आ रही है सबके, है ना? तो मद्दे लाजिम हो रहा है, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे मद्दे लाजिम को। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। क्योंकि दाद पे तो तशदीद है, फिर उसके बाद अलीफ के ऊपर मद लगा है ना, उसके बाद लाम के ऊपर तशदीद है, तो हम दो लीन लाम को 2 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद या मद्दा हो रहा है ना, तो हम उसको भी खींचेंगे। इस तरह खींचते खींचते वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए सांस टूटने तक इसको खींचते हैं, जितनी हम आसानी से सांस ले खींच सकते हैं, है ना? दो लीन, है ना? तो समझ में आ गया आपके? वलद दौलीन, है ना? हुर्फे मद है द्वात के, नहीं तशदीद बाद हुर्फे मद, तशदीद है द्वात पे, फिर हुर्फे मद है क्योंकि अलिफ पे मद लगा है, फिर लाम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पे मद्दे लाजिम होगा, फिर उसके बाद या मद्दा हो रहा है, तो इस तरह ये वलद दोलीन इस तरह पढ़ा जाएगा, है ना? जहां जहां भी तशदीद बाद हुर्फे मद, उसके बाद फिर तशदीद आती है, वहां 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 क्या होगा? मेरी इसके बाद आवाज आ रही? तशदीद बाद हुर्फे मद है, मद के बाद फिर तशदीद होगी, हुर्फे मद के बाद फिर तशदीद या जज़म होगा, तो क्या होगा? तो मद्दे लाजिम होगा। अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताएं। नहीं है ना? है, बताएं। नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है ना? अब इसी तरह आगे भी देखें आप, जैसे फ़ईदा, ये दूसरी वाली तीसरी वाली आयत है, जैसे एक आयत हमने पढ़ी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दोल्लीन, है ना? ये हो गई एक आयत। उसके बाद दूसरी आयत के बाद देखिए फ़ईदा, ये है ना, ये वाली, यहाँ से ये देखिए ये वाला हुर्फ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी मद्दे लाजिम हो रहा है। हाँ, किस तरह हो रहा है बताएं? हुरूफे मद के बाद तशदीद आ रहा है तो मद्दे लाजिम हो रहा है। मद्दे लाजिम हो रहा है, लेकिन देखें हुर्फ तशदीद बाद हुर्फ मद, तो यहाँ पे किस चीज पे तशदीद लगी है, किस चीज पे मद लगा है, तो ये ए से बताएं। मीम पर अलिफ पे तजदीद मद है लगा है, मीम पे और तौआ तशदीद। पे भी तजदीद है और अलीफ पर मद लगा है। हाँ बता रही हैं। तो पे हाँ, तो पे जबर है, तशदीद है उस पे, तो पे उसके ऊपर, उसके बाद अलिफ पर मद है ना? और जी, उसके बाद फिर मीम पर मीम पर तशदीद। तजदीद है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ मद्दे लाजिम मीम पर होगा। मद्दा। हम्म
तो तशदीद बाद हुर्फ मद है और उसके बाद फिर तशदीद है ना। तो पहले तो ये हो गया तशदीद बाद हुर्फ मद, तो पे तशदीद है, उसके बाद हुर्फ मद है ना। हुर्फ मद के बाद फिर तशदीद है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम हो रहा है, तो हम इसको फ़इज़ा जाअतित्तम्मतुल कुबरा, इस तरह पढ़ेंगे हम, है ना। तोम्मा तित्तोम्मा, सबको पता है कि तशदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं, और आगे बताएं। जी। तशदीद वाले हुर्फ को हम 2 बार जी पढ़ते हैं, जी 2 बार पढ़ते हैं, और उसमें थोड़ी सी थोड़ा सख्ती होती है ना। शिद्दत से पढ़ते हैं। तो ये देखिए इसमें और भी है ना चीजें हैं, जैसे फ़इज़ा जाअ, ये जो है अ, एक सेकेंड, यामीन, ये फ़इज़ा जाअ, ये कौन सा मद हो रहा है? ये मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। हमजा पूरा पहले बताएं, कलमे में पूरा हम बताएं। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा पहले कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, उसे 2, ढाई, 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हाँ, इस तरह बताएं कि जिम पर तो है ज़बर, उसके बाद अलिफ पे हुर्फ मद है ना। हुर्फ मद के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है, पहले कलमे में नहीं बोलते, उसी कलमे में जहां पर हुर्फ मद है उसी कलमे में हमजा आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे मद्द मुत्तसिल होगा, और इसके खींचने की मिकदार कितनी है? 2, ढाई, 4। माशाल्लाह। तो ये देखिए ये आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखें, ये हर्फ भी वही है, क्या है यहाँ पर भी? यहाँ पर भी मद्द लाजिम, हाँ, हुरूफ मद्द मद के लाजिम बाद हो रहा है, और यहाँ पर यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। माशाल्लाह, देखें आप, अच्छे से समझ में आ रहे हैं सबके। उसके बाद यहाँ देखें अपी थोड़ा सा। जी। अपी हम हमें एक बार और समझा दीजिए ये मद्दे लाजिम और अच्छा, बताऊंगी उसको भी। देखिए अभी समझा रही हूँ ना मैं, ये मद्द लाजिम के बारे में ही समझा रही हूँ। ये मगर तख्ती नंबर 20 से तशदीद बाद हुर्फ मद, तशदीद बाद हुर्फ मद है, और उसके बाद फिर तशदीद है। हुर्फ मद के बाद जब भी हुर्फ मद जो होता है उसके बाद वाले हुर्फ पर तशदीद या जज़म हो तो मद्द लाजिम होता है, और उसको हम 3 या 5 अलिफ की मिकदार खींचते हैं, या आप जितना आराम से खींच सकते हैं, सांस टूटने तक जितनी आप खींच सकते हैं आराम से उतना खींच लें, ज्यादा लंबा मत खींचें, किसी किसी से नहीं खींचता है इतना लंबा। तो जितनी आप सांस खींच सकते हैं बस उतनी खींच लें, ये होता है मद्द लाजिम। हुर्फ मद के बाद वाले हुर्फ पर तशदीद या जज़म हो तो मद्द लाजिम होता है, और उसे हम 3 या 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। आ रहे समझ में? अब ये वाले हुर्फ पर किस तरह क्या हो रहा है मुझे बताएं। जी। यहाँ पे भी हुरूफ मद के बाद तशदीद है। हाँ, तो हुर्फ मद कौन सा है बताएं। हुर्फ जिस पे मद लगा है वो हुर्फ भी बताएं, और जिस पर तशदीद है वो हुर्फ भी बताएं। अच्छा, हम्म हाँ पर मद लगा है, दुआत पे पेश है और तशदीद है। यहाँ पे हम्म वाव मुद्दा भी हो रहा है। जी सही बताया आपने, हा पे हा हुर्फ मद है, क्योंकि हा पे मद लगा है। जी, और हाँ, और दुआत पे पेश है और तशदीद भी है, तो यहाँ वाव पे जज़म है तो वाव मद्दा भी हो रहा है। तो हमें अभी वो देखना है, ये हुर्फ हा पे हुर्फ मद है, और हुर्फ मद के बाद
والے حرف پر ضاد پر تشدید لگی ہے تو مد لازم ہو رہا ہے یہاں پر، ہے نا؟ اچھے سے سمجھ میں آ گیا سب کے یہ؟ اچھا یہ بتائیں، یہ والا حرف ہے نا، یہ اتنا، اس پہ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ مد لازم نہیں نہیں، دھیان سے دیکھیں، یہ والا جو حرف ہے، ایک سیکنڈ، یہ والا جو حرف ہے یہ اتنا دیکھیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مد منتصل منفصل، مد منفصل متصل، ہو رہا ہے آپ اس پہ، منفصل اس پہ ہاں حمزہ حمزہ اسی دوسرے کلمے میں آ رہا ہے اس پہ۔ کیوں آ رہا ہے؟ پورا پورا بتایا کریں کہاں مد لگا ہے اور کہاں پر کس شکل میں ہے، کہاں پر ہے دوسرا حرف، تو پھر حروف اس کو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے حروف مد منفصل ہو رہا ہے۔ تو کون سے حرف پر حرف مد ہو رہا ہے؟ الف پر حرف مد ہو رہا ہے، الف پہ مد لگی ہے اور حمزہ پہ زیر ہے۔ تو حمزہ کس شکل میں ہے؟ شکل بتائیں اس کی۔ الف کی شکل میں ہے۔ ہاں دیکھیے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، اگر ہم الف کو حمزہ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس بارے میں کہ الف کو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس طرح بتاتے ہیں ہم کہ یہ الف کی شکل میں آ رہا ہے، جب الف کے اوپر اعراب لگی ہوتی ہے تو ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں نا۔ کوئی سا بھی الف ہو، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعراب نہیں ہوتی، اور جہاں پر اگر الف پر اعراب ہو تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ والے الف پر حرف مد ہے اور یہ والے الف پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ والی الف پہ حمزہ۔ زیر ہے ہاں تو ہاں، مد اس لیے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، ہے نا؟ منفصل ہو رہا ہے۔ قالو، مد منفصل۔ ہاں قالو، یہ ہو گیا ایک کلمہ، اور ان دوسرا کلمہ ہو گیا۔ کلمہ مطلب چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہوتے ہیں، ایک پورے لفظ کو ہم کلمہ کہیں گے، دوسرے لفظ کو دوسرا کلمہ کہیں گے، تو یہاں قالو ایک کلمہ ہو گیا، انا دوسرا کلمہ ہو گیا۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ اس کی مقدار بھی 2.5-4 2 انچ 2.5 4 ہاں، دونوں مد متصل کی اور اور مد مد منفصل کی۔ دونوں کی مقدار ایک سا ہے، اور اس کو ہم اور کون سے مد سے اور اس کا اور کوئی سا نام ہے جی میں مد بتا دوں، مد واجب، مد لازم۔ میں افسانہ خان۔ مد واجب مد کسے کہتے ہیں واجب، اور مد مد جائز، لازم مد نہیں جائز۔ ایک سیکنڈ، مد واجب کسے کہتے ہیں؟ مد واجب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، میں نے ہوں یاد رکھا ہے مجھے۔ جس چیز کا آپ نام لے رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں، صرف اس کا بتائیں، مد جو ہم واجب ہاں مد منفصل کے بارے میں مد ہم بات متصل کر کو رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اور ہاں مد ہاں، جائز، مد متصل، مد ہوں منفصل کو کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے مد منفصل کو ہم حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے، مد منفصل ہوگا، اسے واجب مد بھی کہتے ہیں، اور اس کو کھینچنے کی مقدار اور حمزہ اس میں اپنے خاص شکل میں ہوتا ہے۔ مد متصل میں حمزہ اپنی خاص شکل میں ہوتا ہے، جیسا حمزہ ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے یہاں دیکھا ہے نا، تو جی اس کو ہم واجب مد بھی کہتے ہیں، اور اسے 2.5 اور 3 الف کی 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مد منفصل ہوتا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اسے جائز مد بھی کہتے ہیں، اس کی بھی کھینچنے کی مقدار 2 2.5 اور 4 الف ہے نا؟ اور اسی طرح مد لازم ہے، حرف مد کے بعد تشدید یا جزم ہو تو مد لازم ہوتا ہے، اور اسے ہم 3 اور 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، ہے نا؟ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا یہ چیز آپ کے؟ یہاں پہ اچھا ایک اور بتا دیں، یہاں پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں پہ کون سا مد ہو رہا ہے؟ جی کچھ کہہ رہی تھی آپ؟
मद्द मुझे ये लाजिम हो रहा है 20 फिर से बता दीजिए। जी। तख्ती नंबर 20 फिर से बता दिएगा वो। तख्ती नंबर 20 देखिए, तशदीद बाद हुर्फ मद, तशदीद के बाद हुर्फ मद, समझ में आ रहा है आपके? दौत के ऊपर देखिए, पहली पहली ये जो पहली आयत है, यहाँ देखें, तशदीद के बाद ये जो मैंने गोला लगाया है, दौत के ऊपर तशदीद है, उसके बाद हुर्फ मद है। तो जब हुर्फ मद होता है और उसके बाद तशदीद या जज़म होता है, तो हम क्या करेंगे? मद्द लाजिम होगा। पहले हम तशदीद को पढ़ेंगे, ये जो लाम है इससे मिलाकर, तशदीद को हम 2 बार पढ़ते हैं, याद है आपको? तशदीद को हम 2 बार पढ़ते हैं, और एक किस्म की हल्की सी सख्ती होती है उसके अंदर पढ़ने में, और 2 बार पढ़ते हैं। एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, उस पे कोई हरकत लगी होती है ना, तो 2 बार हो जाता है। अब यहाँ पे तशदीद है दौत पे, फिर हुर्फ मद है, अलिफ के ऊपर मद लगा है, उसके बाद लाम के ऊपर तशदीद है। तो यहाँ पर हुर्फ मद के बाद जब भी जज़म और तशदीद होता है तो मद्द लाजिम होता है। ये मैंने आपको पहले समझाया था, वही थोड़ा सा अब इसमें कहीं कहीं पहले तशदीद है, किसी किसी हुर्फ पर पहले, हुर्फ मद के पहले तशदीद है, और हुर्फ मद के बाद भी तशदीद है। तो हम हुर्फ मद के बाद जो तशदीद होगी तो हम उसको मद्द लाजिम कहेंगे, है ना? हुर्फ यहाँ भी देखें, तशदीद तो है तो पे, लेकिन उसके ऊपर, उसके बाद अलिफ पे फिर से मद है, और उसके बाद मीम पे फिर से तशदीद है। तो हुर्फ मद के बाद तशदीद आ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? मद्द लाजिम। हुर्फ मद के बाद जज़म या तशदीद होती है तो हम उसे मद्द लाजिम कहते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा। और उसे हम 3 और 5 अलिफ की मकदार खींचते हैं, जितना आप आराम से खींच सकते हैं। ठीक है? आ रहा है समझ में अच्छे से? बताएं अगर कोई इसमें डाउट हो तो, है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़े, अगर समझ में आ गया हो तो। ये 20 तख्ती समझ में आ गई जी। अब हम देखिए यहाँ पर आते हैं, ये जो ये है या तख्ती नंबर 21। ठीक है, तख्ती नंबर 21 में बस ये देखना है कि इन हरफों को, ये जो हुर्फ हैं, आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? देखे तो होंगे कलाम पाक में आप लोगों ने ये वाले हुर्फ, अलिफ लाम मीम, है ना? तख्ती नंबर 21 है हुर्फ मुक़त्तआत। क्या है? हुर्फी मुक़त्तआत। हाँ, ये वाले हुर्फ आते हैं कलाम पाक में। पहले ही पहले पारा है अलिफ लाम मीम, और भी आपने यासीन, तोहा, ये सब अलिफ लाम रा, क़ाफ, नून, स्वाद, ये है ना? ये इस तरह की जो सूरह शुरू होती है उनमें इस तरह के पहला वर्ड्स जो अल्फाज होता है वो लिखा होता है इस तरह से, ये पूरे जो बने हैं, कफ हा या ऐन स्वाद, इस तरह के देखे ना आप लोगों ने? बोले कुछ, जवाब तो दें मुझे। जी देखें। तो हम इन हरफों को, इन लफ्जों को हुर्फ मुक़त्तआत पढ़ते हैं, मतलब कहते हैं, इन हुर्फों को हम हुर्फ मुक़त्तआत कहते हैं, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो सिर्फ अल्लाह को पता है और किसी को नहीं पता, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता इनके मीनिंग्स। जितने भी ये हैं हुर्फ मुक़त्तआत, इनको हम हुर्फ मुक़त्तआत कहते हैं, ये याद रखिए आप। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, कफ हा या ऐन सॉद, तो हा, तो सीम मीम, तो
यासीन, यासीन, स्वाद, हामीम, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। आ गया समझ में? इनको हम हुरूफ़े मुक़त्तात कहते हैं। तख्ती नंबर 21 लिखें, उस पे लिखें हुरूफ़े मुक़त्तात, 2-4 ये वाले हुर्फ लिख लें। उसके बाद लिखें इन हरफों के मीनिंग्स किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के। बस अल्लाह ही जानता है कि इनका मतलब क्या है, इनका तर्जुमा क्या है। ठीक है, जी समझ में आ गई ये दोनों चीजें आपकी? लिखना जरूर है, जितना भी है इसके बारे में, जितना भी मालूमात आपके पास आ रही है उनको लिखना जरूरी है, ताकि आप कभी भी अपनी कॉपी खोलकर तख्ती नंबर चेक कर सकती हैं कि हाँ ये वाली तख्ती में ये चीज बताई गई है। ठीक है, मेरी बात आ रही है आपके समझ में? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब हम आ जाए आगे, तख्ती नंबर 22 पे आ जाए। ये थोड़ी सी है अच्छी, पढ़ने में आपको इसको मजा आएगा। अभी मैं एक बार जल्दी जल्दी आपके नाम बोलती हूँ, फटाफट बस बोल देना। अफसाना खान, जल्दी जल्दी बोलना। जी अफसाना साहिबा जी मौजूद है? जी जी। जी बुशरा साहिबा, बुशरा हुसैन, बुशरा जी हुसैन, जी जी जी। जी, फटाफट फटाफट बोल दे, है ना। अदीबा, अदीबा हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस जी जी कह दीजिए जल्दी से। रुकैया मंसूरी, आप भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरजाना खान, वालेकुम अस्सलाम व जी अपनी रहमतुल्लाह। रब्बैक। जी रुखसार खान है, रुखसार खान। जी अपी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सब हैं। अशरा मंसूरी, जी अशरा अपनी। मंसूरी जी। और अनीसा बी, अनीसा बी, अनीसा बी मौजूद नहीं है, है ना। अब देखें साइमा, साइमा हैंगी आप? साइमा या शफीक नहीं है? बोलिए, नहीं है, जल्दी से बोलिए। नहीं है? चलिए इंशा शेख, इंशा शेख मौजूद हैं? फूल भी लब्बैक। माशाल्लाह मौजूद हैं। समीना खान, समीना खान, समीना खान मौजूद हैं? नहीं है? नाजमा सुल्तान, नाजमा सुल्तान, नाजमा सुल्तान मौजूद नहीं है? माहिदा खान, माहिदा खान, अमरीन खान, अमरीन खान, सईदा निक्की, जो अटेंडेंस में बोलेगा नहीं उसकी एब्सेंट होगी। सईदा जी निक्की अपी हैं। साहिबा, जी। बाकी जी लोग नहीं अपी हैं। हैं। हाँ जी। अमरीन खान नहीं है, माहिदा खान नहीं है, नाजमा सुल्तान नहीं है, और समरीन खान नहीं है। चलिए ठीक है। और माशाल्लाह जिन जिन ने सबक भेजा है मैंने उनको स्टार दिए हैं, है ना। मैं ग्रुप पर नहीं डाल पाई, मुझे पता नहीं क्यों, कुछ वक्त नहीं मिला, मगर मैंने अपनी कॉपी में अटेंडेंस लिखी है जिन जिन ने सबक भेजा है। बुशरा साहिबा और अदीबा साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छा सबक भेजा है, दोनों को स्टार मिले हैं। तो शुक्रिया। जजाकल्ला। चलिए देखिए, अब हम आगे, देखिए हो जाता है ऐसा कि वक्त नहीं मिल पाता, तो मैं डाल नहीं पाई। इंशाल्लाह अगली बार डालूंगी, मगर मैंने आपको रजिस्टर में स्टार्ट दिया है। आपको जो होमवर्क की अटेंडेंस है उसमें आपका नाम है माशाल्लाह। और चलिए अब हम आ जाएं तख्ती नंबर 22 पे आ जाएं। जिन जिनका कुछ हमारा नाम तख्तियां नहीं रही, लिया आपने? जी आपका, आपने सबक डाला है, लेकिन ये इन सबक। दोनों, जी माशाल्लाह आपका भी देखिए सबक जिन जिन्हें डाला है उनके अटेंडेंस है, लेकिन जिनका एक्स्ट्रा है माशाल्लाह, जिन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत की है और वो अलग से उन्होंने असाइनमेंट बनाकर डाले हैं तो उनको स्टार मिला है। बाकी अटेंडेंस जिन जिन ने डाला है सबकी है ना। अपनी मैंने भी भेजा था अफसाना खान, मेरे भी डले।
ये क्या कह रही हैं आप? मैंने भी होमवर्क भेजा था अफसाना खान। जी जी जी, मैंने आपकी, अफसाना खान की, बुशरा साहिबा, अदीबा साहिबा और रुकैया साहिबा, इनकी अटेंडेंस है। अभी जो लास्ट वाला जो होमवर्क है उससे पहले वाले में अलग अलग नाम है, अभी जो लास्ट जो डाला है उन लोगों का है, इन तीनों चारों का। हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई हम आपने, हमने तो खैर सबक नहीं डाला, हम अभी जोड़े हैंगे। हाँ, तो वो होमवर्क की बारे में, आपका नाम क्या है? अनीसा भी। अनीसा भी, मैंने नाम पुकारा था आपका, आपने अनीसा भी, जी आपने आवाज नहीं सुनी मेरी, मैंने आपका नाम जी पुकारा था, चलिए डाल दी मैंने आपकी अनीसा भी। और जो जो जी होमवर्क वाले हैं उनकी बता रही थी अभी मैं। तो चलिए हम आगे इंशाल्लाह, तो डालें आप लोग सबक, इसकी भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अगर अभी मैंने जिनको, तो बराबर ही भेजा है होमवर्क, बस उस टाइम नहीं भेजा था जब मेरा उज्र था। आपका नाम? अफसाना खान। जी जी हाँ, आपका अफसाना साहिबा, मैंने आपकी अटेंडेंस लगाई है ना? और एक बार तो मैंने चेक भी किया था, अभी भी चेक करा था, मगर मैं ग्रुप पर नहीं डाल पाई, जिन जिनका जी है थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हैं किसी किसी की। इंशाल्लाह मैं अगले क्लास, अगला जो होमवर्क होगा ना तो डालूंगी इंशाल्लाह, है ना? जी तो डालें जी आप लोग, चेक करूंगी और आपको रिप्लाई भी दूंगी, दिया था ना जैसे पिछली बार। अभी इस बार मैंने लिख तो लिए हैं सबके, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाई, इंशाल्लाह अब करूंगी, ठीक है? जी। तो हम आ रहे हैं तख्ती नंबर 22, मीम साकिन के कायदे। एक से जी भाई, ये है ना तख्ती नंबर 21 का एक सेकंड कायदा, यही है ना, इन हर्फों के बारे में किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के। जी जी बिल्कुल, ये लिखिए यही कि तख्ती नंबर 21 है, हुर्फ मुक़त्तात भी लिखा है उसमें, वो लिखिए, उस नीचे थोड़े से नाम लिख लीजिए, और जो जितने नाम जी लिखे अगर चाहें तो ये लिखकर नीचे या ऊपर लाइन में लिख लीजिए, इन हरफों के मीनिंग्स सिवाय अल्लाह की किसी को नहीं पता, बस इतना जी, लिखना है। बेहतर है, कि बस आपको पता हो शुक्रिया। कि ये हुर्फ अगर कोई इसके बारे में बात करे तो आप बता सकें, आपको मालूम हो कि ये हुर्फ जी मुक़त्तात है, और इनके बारे में इनके तर्जुमा या मीनिंग्स के बारे में कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा, ठीक है? अब आ जाइए 22, जी तख्ती नंबर 22 पे आ जाइए। अभी तक हमने नून साकिन के कायदे पढ़े हैं, अब ये मीम साकिन के कायदे हैं। मीम साकिन मतलब समझते हैं आप लोग? बताएं जिनको पता है, और नहीं पता तो वो भी बोल दिया करें कि मीम नहीं पे पता तो बता। जज़म, मीम पे जी जज़म। जी मीम जी के जी ऊपर जज़म है तो मीम साकिन कहलाएगा। जी, क्योंकि जज़म को हम सुकून भी कहते हैं और साकिन भी कहते हैं, है ना? तो जिस मीम पर जज़म हो उसे हम मीम साकिन कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही लिखना है उसको, तख्ती नंबर 22 है, मीम साकिन के कायदे उसमें डालना ऊपर, और फिर है ये इजहार शफवी, इख्फा शफवी और इदगाम शफवी। ये देखें आप, एक सेकेंड, ये देखें आप, एक सेकेंड, इसको मिटा, दुकान पता नहीं क्या मसला है। क्या जानिश के उधर का भी दिया उधर कर दूंगा। देखिए बातें करें ना आप तो माइक को बंद करके बात कर लीजिए। अब ये देखिए, क्योंकि आपकी बातें सब लोग सुनते हैं, है ना? तो देखिए सबसे पहले ये है यहाँ पर, ये है इदगाम शफवी। क्या है? इदगाम शफवी। हाँ, इदगाम का मतलब होता है, सबसे पहले इसका ध्यान दीजिए, इदगाम सबसे पहले डालें आप इदगाम शफवी, उसके बाद इदगाम का मतलब होता है मिलाना, इदगाम का मतलब होता है मिलाना, और शफवी मतलब होठों को होंठ। कहते हैं, हाँ होठों को कहते हैं, होठों से मिलाना। इदगाम मतलब मिलाना, शफवी यानी होठ, होठों से मिलाना, ठीक है? आ रहे समझ में? अब जी इसको जी जी। देखें, मीम साकिन के बाद, मीम साकिन यानी जज़म वाली मीम के बाद, मीम साकिन के बाद मीम आए, ये जज़म लिखना है वाली जी कोई कुछ कह रहा है? जी, अब ये लिखना है, आप बोल रही हो। देखिए लिखें आप, ये इसमें लिखा हुआ है तो आपको इस हिसाब से लिखना है, जो मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा वो आप अभी लिख लें, बाद में आप फिर फेयर, अभी रफ कॉपी में
जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, अगर जितनी जल्दी लिख सकती हैं, क्योंकि लिखवाने में बहुत वक्त हो जाएगा और मैं तख्ती नहीं समझा पाऊंगी, तो आप जो मैं एक्स्ट्रा इसके अलावा जो बताऊं वो लिख लीजिए और बाकी फिर अच्छे से बना लीजिए बाद में पर फेयर कॉपी में, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ ये तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे, ठीक है। उसमें है इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी, तीनों के नाम लिख लें ऊपर, फिर नीचे थोड़ी सी हेडलाइन डालें इदगाम शफवी। इदगाम शफवी, इदगाम यानी मिलाना, शफवी यानी होठ, होठों से मिलाना, ठीक है। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना, गुन्ना क्या होता है? नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है और गुन्ना की मिकदार होती है 1 अलिफ के बराबर। तो हम मीम साकिन के बाद अगर मीम आता है तो हम मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जी ठीक है, जी ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमने पढ़ा इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, लहुम मा यशाऊन। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। देखिए तशदीद का तो आपको पता ही है कि तशदीद को हम मीम मुशद्दद कहते हैं तो गुन्ना होता ही है ना। तो हम तशदीद वाले हुर्फ को 2 बार पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इत्तेफाक नहीं, मतलब जैसे कोई सा भी हुर्फ होता है उसमें तशदीद होती है तो हम 2 बार पढ़ते ही हैं उसको, एक बार पहले वाले हुर्फ से मिलाकर और एक बार उसका खुद का वजूद होता है, यानी उस पर कोई हरकत होती है तो हम उसको 2 बार पढ़ते हैं। मगर जब मीम पर तशदीद होती है तो हम मीम और नून पर जब तशदीद आती है तो हम उसको गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। गुन्ना समझते हैं ना आप लोग? जी हाँ बताएं, गुन्ना का मतलब है? गुन्ना का मतलब है 1 अलिफ की मिकदार नाक में आवाज को रोकना। जी, जब भी मीम और नून पर तशदीद आएगी तो हम ये करेंगे, है ना। तो लहुम मा यशाऊन, फी कुलूबिहिम मरदुन, फहुम मुरिदून। अब एक चीज और समझिए कि ये जैसे इलैकुम है, ये यहाँ देखें, ये इतना हर्फ इलैकुम, पहला जो काफ है, काफ के ऊपर पेश है, ठीक है। उसके बाद मीम के ऊपर जज़म है जी और उसके बाद मीम के ऊपर तशदीद है। तो हम अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि हम दोनों में से कौन सा मीम पढ़ेंगे? तशदीद वाला। बाद वाला। तशदीद वाला। क्यों पढ़ेंगे तशदीद वाला हुर्फ हम? क्योंकि मीम पे तशदीद है, मीम मुशद्दद हो रहा है तो गुन्ना करेंगे। हाँ देखिए, जब जज़म और तशदीद साथ आती है ना, बिल्कुल साथ साथ हुर्फ पर जज़म और तशदीद होती है तो हम जज़म को छोड़ देते हैं और हम पढ़ते हैं तशदीद को, ठीक है। समझ में आ रहा है? तशदीद वाले हुर्फ को हम पढ़ते हैं और अब यहाँ पर मीम पर तशदीद है तो हमको इसको मीम मुशद्दद कहेंगे और हम इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। गुन्ना मतलब होता है नाक में आवाज को रोकना। आ रहा है समझ में? किसी के ऐसा हो कि नहीं आ रहा समझ में तो बताइए। जी आ रहा है।
मीम के ऊपर तजदीद होती है तो मीम मुशद्दद होता है, यानी हमें गुन्ना करना ही है। ठीक है, सिर्फ मीम साकिन के कायदे में ही जज़म आएगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे या बाकी कायदों में भी? नहीं बाकी सारे बता रही हूँ, कोई सी भी मतलब कायदा, ये तो कायदा है, इसके अलावा भी अगर साथ में आते हैं जज़म और तजदीद देखें, आप हर्फ मत देखें, जज़म और तजदीद, नो जज़म और तजदीद देखें, पहले जज़म आ रहा है बाद में तजदीद आ रही है, तो हम जज़म वाले पहले, जैसे जज़म मीम के ऊपर जज़म है, मान लीजिए कोई सा और हर्फ है मीम ना होकर, उसके पहले काफ के ऊपर पेश है ना, पहले काफ पे पेश है, फिर मीम पे जज़म है और फिर मीम पे तजदीद है, तो हम जज़म वाला कोई सा भी हुर्फ होगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे अगर तजदीद है तो हम तजदीद से मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ तो मीम पे तजदीद है, अगर कोई और हुर्फ भी ऐसा होगा कि तजदीद से पहले जज़म आ रहा है जिस हरुफ पर, उसके बाद फिर तजदीद है फौरन बादी, तो हम तजदीद को पढ़ेंगे और हम जज़म को नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है मीम, तो मीम मुशद्दद होता है, तो जब मीम और नून पे तजदीद होती है तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद होता है, तो हम वहां पर गुन्ना करते हैं। गुन्ना मतलब होता है नाक में आवाज को रोकना, एक अलिफ की मिकदार। आ गया। इदगाम मतलब मिलाना, और शफवी यानी होंठ, होंठों से मिलाना। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना। गुन्ना होता है, गुन्ना की खींचने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। समझ में आ गया? आगे जी बढ़ूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आगे हम पढ़ेंगे इख्फाए शफवी। इख्फा तो आपने पहले पढ़ लिया। इख्फा का मतलब होता है नाक में आवाज को रोकना, है ना। अब यहाँ पर है इख्फाए शफवी। इख्फाए शफवी, इख्फा इख्फा होता है नाक में आवाज को रोकना, शफवी वानी होठ। तो मीम साकिन के बाद अब ये देखें, इख्फा यानी नाक में आवाज को रोकना, शफवी यानी होठ, है ना। तो मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। गुन्ना मतलब नाक में आवाज को रोकना, और इख्फा मतलब नाक में आवाज को छिपाना। ठीक है, मतलब ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, इन्ना रब्बहुम बिहिम हम, थोड़ा सा इख्फा होगा, बाकी गुन्ना होगा। ठीक है, जी इन्ना रब्बहुम हम, इस तरह से थोड़ा सा इख्फा होके बाकी गुन्ना होता है ना। तरमीहिम बिहिजारतिन, थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को निकालने में, थोड़ा सा करेंगे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह हो जाएगा, है ना। इन्ना रब्बहुम, पढ़े इन हल्का सा ऐसे करें, इन्ना रब्बहुम बिहिम, हाँ। ये जो मीम साकिन के बाद बा आए तो देखें, जहां भी मीम साकिन है, ये देखें मीम साकिन, ये वाला हुर्फ मीम साकिन, मीम के ऊपर जज़म है ना, उसके बाद बा आ रहा है, यहाँ पे ये बा आ रहा है। ठीक है, मीम साकिन के बाद बा आए तो यहाँ पर आपको हल्का सा इख्फा और फिर गुन्ना करना है, और अब होम हल्का सा, होम बिहिम, इस तरह करना है ना। अब इसके बाद, अच्छा इसके बाद वाली हुर्फ पर आप लोग बताएं कि कहाँ पर हमें ये करना है। तरमीहिम बिहिजारतिन, ये वाली आयत में कहाँ पर होगा, यहाँ पर वही इख्फाए शफवी, थोड़ा सा हिम पर
जज़म वाली मीम पर होगा और यहाँ पे तरबी हिम पर होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गया। ये वाली मीम है जज़म वाली मीम, उसके बाद ये देखिए, ये बा है, ये वाला बा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बा का नुक्ता है, फिर हा के नीचे जेर है और ये जीम है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए इख्फा गुन्ना साथ। मीम पर जज़म होगा तो उसको नाक में छुपा के पढ़ेंगे। देखिए दोनों चीजें एक साथ होती हैं, इख्फाए शफवी में दोनों चीजें साथ होंगी। थोड़ा सा हल्का सा उसमें इख्फा होगा और फिर गुन्ना भी होगा, तो दोनों चीजें, ये मीम पर हो रहा है साकिन और उसके जी। बाद ये बा है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तरमी हम और तरह जी। बिहिजारतिम। हिजावतिम। हाँ, अब इसी तरह बताएं, वमा हुम बिमुमिनीन। अब भी यहाँ पर हो रहा है हम पर हो रहा है, भी जज़म वाली भी है यहाँ पर और भी आ रहा बात आ रहा है, अभी तो यहाँ पर होगा वमा हुम बिमुमिनीन। हाँ, वमा हुम बिमुमिनीन, या ये जज़म वाली मीम है, उसके बाद ये बा के नीचे जेर है, तो यहाँ पर भी वमा हुम बिमुमिनीन। बिमुमिनीन। अच्छा, उसके आगे कौन सा? इस पे भी होम पर आ होता है, फिर उसके बाद हम पर हो रहा पे से है, जज़म वाली मीम है और बा पे जेर है। जी, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। अभी इसमें ये देखना है मीम साकिन के बाद बा आए, तो बस ये मीम साकिन के बाद बा आए, ये बा आ रहा है मीम साकिन के बाद, ये बा आ रहा है मीम साकिन के बाद, ये वाला बा आ रहा है मीम साकिन के बाद, फिर ये बा आ रहा है मीम साकिन के बाद। तो हमें यहाँ पर गुन्ना और इख्फा दोनों करना है, ठीक है। इख्फाए शफवी जी। अभी इख्फाई सफी पर बा के नीचे जेर ही होगा, तो अभी इख्फाई सफी होगा। अभी तो इसमें जेर जेर आ रहा है, मगर ऐसा है नहीं कि खाली जेर ही हो, ज्यादातर हम भी अजाब, ये जरूरी नहीं है कि बा के नीचे जेर ही हो तो इख्फा होगा, बा आना चाहिए, बस बा देखें आप, मीम साकिन के बाद बा। होगा है ना आपकी। हाँ हाँ, मीम साकिन के बाद बा देखें बस आप, मीम साकिन के बाद अगर बा आ रहे तो वहां इख्फा और गुन्ना दोनों होंगे, हल्का सा इख्फा होगा और फिर गुन्ना हो जाएगा। बस ये देखना है, इख्फाई शफवी में इख्फा मतलब होता है नाक में आवाज को छिपाना, है ना। हाँ, और गुन्ना मतलब होता है नाक में आवाज को रोकना। बस मीम साकिन के बाद, जज़म वाली मीम के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। गुन्ना मतलब नाक में आवाज को रोकना और इख्फा मतलब नाक में आवाज को छुपाना। तो आ गया आपके अच्छे से समझ में ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब एक बचा है इजहार शफवी। इजहार तो आपने पढ़ा है पीछे भी, है ना, जैसे आपने इख्फा पढ़ा है इसी तरह आपने इजहार भी पढ़ा है। इजहार शफवी, इजहार मतलब होता है जाहिर करना, और शफवी यानी होठ। हाँ, शफवी यानी होठों से जाहिर करना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम के अलावा कोई और हुर्फ, खास तौर से वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं हम तुम, आवाज आ रही है नून की आवाज आ रही है, ना हम उसमें गुन्ना कर रहे हैं ना हम उसको छुपा रहे हैं, इख्फा भी नहीं कर रहे, हम सीधे मीम को
जाहिर करके पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, सबके मीम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो इसको ये देखना है, मीम साकिन जज़म वाली मीम के बाद बा आए तो मीम के अलावा कोई और हुर्फ, बिलखुसूस मीम के अलावा अगर कोई हुर्फ आए, या खास तौर से अगर वाव या फा आए तो मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा हुम फीहा, इस तरह। यहाँ पे मीम साकिन के बाद फा आ रहा है ना। हाँ, ये फा आ रहा है, खास तौर से फा आ रहे, तो हम इसको जाहिर करके मीम को जाहिर करेंगे, ठीक है। जी। फीहा, और कोई सा भी आएगा तो हम उसको मीम को जाहिर करेंगे, लेकिन अगर वाव और फा आएगा तो हम खास तौर से जाहिर करेंगे। लकुम ये आपकी और कौन सा? देखिए, मीम साकिन के बाद बा आए तो, मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम के अलावा कोई और हुर्फ, बिलखुसूस वाव या फा आए तो हम क्या करेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। मीम की आवाज को हम जाहिर करेंगे। जाहिर मतलब इजहार। इजहार करेंगे, यानी जाहिर करेंगे, ठीक है। इजहार यानी जाहिर करना है ना। इजहार शफवी मीम के बाद, मीम साकिन के बाद जज़म वाली मीम के बाद बा आए, बा और मीम के अलावा, इजहार शफवी में मीम साकिन यानी जज़म वाली मीम के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हुर्फ, बिलखुसूस कोई और हुर्फ भी आए, खास तौर से वाव या फा आए तो मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे तो फा आ रहे, हुम फीहा पढ़े। हम फीहा। हाँ, क्योंकि यहाँ फा आ रहे तो हम तो वैसे भी जाहिर करेंगे इसे, हुम फीहा। लकुम दीनुकुम लम यलबसू अम लम तुंज़िरहुम। अच्छा, मैंने अभी क्या करा है, कुछ खास करा है? इसको करा आपने तुंज़िरहुम। जी आपने तुम पे। जी, माशाल्लाह, आ गया समझ में आपको, है ना। क्योंकि यहाँ के नून के बाद, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? के 15 फ्लोर से तारा। माशाल्लाह, हाँ, ये आ रहे अभी जाल। जी जी। मैं ये कह रही थी, इसके बाद आप क्या सबक ये ऊपर से पढ़ा देंगे, इसे जैसे अभी पढ़ाया था, मतलब कायदे तो समझ में आ गए, कायदे तो सब समझ में आ गए, तो आप ग्रामर से पढ़ा देंगे एक एक बार। कैसे? अभी जो पढ़ा रही हूँ, अम लम हाँ, जैसे ऊपर से पूरा से लेके नीचे तक। जी। अम लम तुंज़िरहुम लहुम अज्रुन लहुम अज्रुन। सब में हमने मीम जितने भी हमने अभी हुर्फ पढ़े हैं, हमने सब में मीम को जाहिर करके पढ़ा है ना। हाँ, इजहार का मतलब ही होता है जाहिर करना, है ना। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। वो जो हमने पहले तख्ती पढ़ी थी उसमें हमने नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ा था, इसमें हमने मीम की आवाज को जाहिर करा है, जी, है ना। जी, जी, तो सिर्फ नून और मीम पर ही इख्फा होता है और गुन्ना होता है, ठीक है। बाकी हुर्फों पर नहीं होता। तो यहाँ पर मीम आ रहा है तो हमने मीम की आवाज को ना छुपाया ना गुन्ना करा, हमने जाहिर करके पढ़ा, सामने रख दिया। जैसे हम, तुम, ठीक है, मीम आ गया उसमें, जाहिर करके पढ़ दिया हमने उसे, ठीक है। अब एक बार कैसे पढ़ाऊं मैं? इदगाम शफवी। हाँ, इदगाम शफवी, इदगाम यानी मिलाना, शफवी यानी होठों से मिलाना।
तो से मिला मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज को रोकना, और इसको रोकने की मिकदार है 1 अलिफ के बराबर। ठीक है, अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, लहुम मा यशाऊन, फी कुलूबिहिम मरदुन, फी को खींचेंगे हम, काफ को नहीं खींचेंगे, फिर लू को खींचेंगे। फी कुलूबिहिम मरदुन, फहुम मुअरिदून, मुअरिदून, आइन है ना? थोड़ी सी आप जब फ्री हुआ करें ना तो आइन और हा की थोड़ी सी मश्क किया करें। आइन और हा एक ही मखरज है, इनको निकालने का तरीका एक ही है। थोड़ी सी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन हरफों में दोनों में मेहनत करना पड़ेगी, इंशाल्लाह निकल जाएगा, है ना? अब देखिए इख्फाए शफवी। इख्फाए शफवी है, इख्फा यानी छिपाना। हाँ, छुपाकर होठों से इख्फा यानी छिपाना, शफवी यानी होठों में छिपाना। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। गुन्ना मतलब नाक में आवाज छिपा रोकना, और इख्फा मतलब नाक में आवाज को छिपाना। ठीक है, इन्ना रब्बहुम बिहिम, बिहिम, हाँ, तरमीहिम बिहिजारतिम, वमा हुम बिमुमिनीन, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, अब हम आएंगे इजहार शफवी, है ना? इजहार मतलब जाहिर करना, शफवी यानी होठ, होठों से जाहिर करना। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हुर्फ बिलखुसूस यानी खास तौर से वाव या फा आए तो मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे उर्दू में हम कहते हैं हम तुम, इस तरह का मीम, है ना? तो अब यहाँ पर हम फीहा, हम फीहा, तो यहाँ पे फा आ रहे तो हम इसको वैसे तो हम जाहिर जाहिर करके पढ़ेंगे। खास तौर से वाव या फा आता है तो हम मीम को जाहिर करके पढ़ते हैं। हम फीहा, लकुम दीनुकुम, लम यल्बसू, अम लम तुंज़िरुहुम,
हम लम तुंज़िरहुम लहुम अज्रुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 22 तख्तियां हो गई हैं। अब जैसे ही ये जो तख्तियां हमारी मुकम्मल होती हैं, अब इतना ज्यादा नहीं है, इंशाल्लाह अपना अपना जो रह गया है वो आप लिख कर रखें। जैसे ही हमारी ये दो तीन तख्तियां बची हैं तो हम इनको मुकम्मल करके इंशाल्लाह जिनका जो भी चीज रह गई है फिर हम वो अपन रिपीट करेंगे। जिनका जो भी रह गया आप लिख कर रखना कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे ये समझना है। सबसे कह रही हूँ, सबसे कह रही ये हूँ नून की आवाज को छिपा के पढ़ते हैं जी। और मीम, ये नून की आवाज को छिप देखिए नून और मीम पर तशदीद होती, जैसे हमने इख्फा पढ़ रहे हैं, इख्फा पढ़ते हैं तो नून साकिन के बाद अगर हुर्फ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हुर्फ आता है तो हम नाक में आवाज को छुपाएंगे, तो इसे इख्फा कहते हैं, है ना। तो आप किस चीज के बारे में पूछ रही हैं? यही ये भी आपने बोला था ना कि नाक में रोकेंगे और छिपाएंगे। ये इख्फाए शफवी, इख्फा मतलब छिपाना होता है ना, तो हम मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ, मीम साकिन के बाद बा देखें आप कौन सा पढ़ रहे थे हम, इख्फाए शफवी। ये देखें मीम साकिन, अरे भाई ये वाला, ये मीम साकिन है जज़म वाली मीम, उसके बाद ये बा आ रहा है, देख रही हैं आप जी 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 स्क्रीन पे दिख रहा है मीम साकिन यानी जज़म वाली मीम, उसके बाद बा आ रहे, तो हम क्या करेंगे, इख्फा और गुन्ना दोनों करेंगे। मीम की आवाज को हल्का सा छुपाकर और गुन्ना कर देंगे, यानी नाक में रोक लेंगे आवाज। इसमें होगा थोड़ा सा इख्फा और गुन्ना। जब मीम साकिन के बाद बा आएगा तो इस तरह होगा। हल्की सी कोशिश करेंगे, आप आ जाएगा। वैसे मुश्किल होती है थोड़ा, हम लोगों ने भी सीखा है, इसी तरह सीखा है जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसे हमने भी सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो पहले हम भी ऐसे ही थे, हमें भी कुछ नहीं आता था जिस तरह आप लोग हैं। जब हम जुड़े थे तो हमने भी ऐसे ही सीखा है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, लेकिन वक्त दें थोड़ी सी और दिल में शौक पैदा करें अल्लाह की रजा के लिए और जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको बहुत अल्लाह का शुक्र करना है कि अल्लाह पाक ने आपको ये जोड़ा है यहाँ पर। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हम यहाँ जुड़ गए हैं। तो कम से कम हमको अल्लाह ने तौफीक दी है इस चीज की, क्योंकि हमारे दिल में शौक था इस चीज का, है ना। तो हम शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे और हम क्लास लेना नहीं छोड़ेंगे। शैतान बहुत बहकाता है, बहुत बहकाता है, ठीक है। तो हमें उसके बहकावे में नहीं आना और हमें जुड़े रहना है और मेहनत कोशिश करते रहना है। इसके साथ हम घर गृहस्थी भी संभालेंगे तो अल्लाह हमको डबल अजर देगा इसका, ठीक है। प्यार मोहब्बत से घर संभालें और प्यार मोहब्बत से क्लासें लें शौक के साथ, और सारी सारी जो दुनियावी बातें हैं सबको एक तरफ रख के फिर क्लास में आए, तो इंशाल्लाह सब आपके समझ में आएगा, ठीक है जी। ये तो परेशानी हो रही है, इस टाइम इतना ज्यादा कदर होता है खाने का भी और बच्चों का सिपारा का भी, इतना कदर करते हैं कि इंशाल्लाह। आधी हमारी क्लास उन लोगों को रोकने में लग जाती है। लीव ठीक है, कर अल्लाह लो फिर पाक, क्लास हो गई हो तो। हाँ जी जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपकी जो मुश्किलें हैं परेशानी हैं उसमें आसानी करेगा अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ध्यान करते हैं, सिपारा पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पे सब वहां पर बैठे हुए हैं और बस मैं उधर जाती हूँ, ये क्लासेस छूटती है मेरी, ये बार देखें बार आपको आप कि ये परेशान करना वक्त पड़ता है। जी नहीं नहीं बिल्कुल है ना, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अज्र देगा। देखिए आप उधर भी संभाल लेंगे और अपनी क्लास ले रही हैं, तो ये वक्त आपका बहुत जखीरा बनेगा आपका। सोचिए आप जरा कि आप सब तरफ से लगी हुई हैं और फिर भी सीख रही हैं, है ना।
मुश्किलों में आसानियां तो सभी, आसानियों में तो सभी को ही कर लेता है, लेकिन जो मुश्किलों में करता है ना उसका तो फिर दर्जा ही अलग होता है ना। तो ये सोच के कर रहे हैं हम, घबराना नहीं है परेशानियों से। मैं भी घर में नहीं अकेली परेशानी नहीं, बस ये होता है कि पूरा सही से समझ लें, क्योंकि ये लोग हाँ इतना नहीं, आप परेशान करते हैं बीच बीच में। आप लोग नहीं समझ में आया करें तो पूछा करें, अभी भी आप लिख कर रख लें, इंशाल्लाह कल क्लास में जी लिख ही वक्त रही थी रहेगा। मैं बस। जी बिल्कुल लिखिए, जिन जिन का जो भी चीज रह गई हो इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं बताऊंगी आपको, है ना, तो परेशान ना हो जी बिल्कुल। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। जी मैं नाजमा सुल्तान में, नाजमा मैं भूल गई थी, बिल्कुल आज। अच्छा, भूल गई थी आप, तो फिर आपकी जी लीव मैं पिछले लगेगी, हफ्ते आपकी नहीं लगा अटेंडेंस जी, मैंने भूला पिछले हफ्ते नहीं नहीं कर करी थी रही बस। थी। अच्छा अच्छा, नहीं आप भूला नहीं कर रहे हैं ना, पिछले हफ्ते जी नहीं हुई नहीं थी नहीं, वो तो आपकी, हाँ मेरी बस दोनों पिछले दिन वो लीव असली लगी मेरे। थी ना। जी दोनों जी दिन जी लीव मैंने थी आप। बता दिया था, वो मैं हॉस्पिटल में थी, जरा बिजी थी। जी जी जी, हाँ हाँ मैंने देख लिया था। चलिए ठीक है ना, वक्त हो गया है, अब हम जी जी इंशाल्लाह जी कल जी नाज़िमा जी साहिबा, कल करूँगी अ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाहिदा साहिबा, अस्सलाम जी जी वालेकुम जी रहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी ये 2 ज़रूरी अनाउंसमेंट्स करने थे। ये जामिया जो हमारा नया इदारा है, नया जो अंडर आईआईएफ स्टार्ट हुआ है, जामिया इस्लामिया रेहानतुल हुदा, इसके एडमिशन अभी जारी हैं, आलिमियत के, मोमिना के और किड्स के। तो आप में से जिसको इंटरेस्ट हो या जो दूसरों को बताना चाहें वो बता सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए हैं, ख़ास तौर पे आलिमियत के। तो आपसे बार-बार कहा जा रहा है, तो आप दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाएँ। और अगर अभी कोई इंटरेस्टेड हो तो बताएँ। किसी को नाम दर्ज कराना है? ठीक है। इसके अलावा हमारा इदारा इंशाल्लाह बच्चों के लिए एक ड्राइंग और कलरिंग कॉम्पिटिशन लेकर आया है, बहुत बड़े लेवल पर। इंशाल्लाह इसके लिए इसकी मालूमात है आप लोगों को? पहले तो मुझे ये बताएँ। जी जी मालूम। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने बच्चों को एनरोल कराया है? जी जी करवाया है आप लोगों ने? जी करवाए है, और एक और का नाम लिखवाना था। जी, लिखवा ऐसा करिए, लिखवाइए मत, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा फॉर्मेट वहीं पर है ना। फॉर्मेट अभी फॉरवर्ड कर देंगे फिर से, तो आप उस फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखवा लिए। कौन बात कर रही हैं? समीना खान, समीना साहिबा आप बोल रही हैं ना? नहीं बुशरा, मेरी बुशरा बहन की क्या? बेटी का भी करवाना था जी। हाँ, मेरी बेटी का तो करवा दिया था मैंने, पर मेरी बहन की बेटी का भी करवाना था। जी, जी, तो आप उसी फॉर्मेट पर फॉरवर्ड कर दें वहाँ पर, ग्रुप पर ज़रूर से तो आज, ये ठीक है? ना इसी नंबर से मुझे सेंड करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही रहेगा ना? जी, जी, ऑनलाइन रहेगा और आप अपने नंबर से सेंड करिए, लेकिन देखिए हमारे फॉर्म के अंदर हमने इसीलिए नंबर अलग से मेंशन किया है, कि कोई भी किसी का, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए, सिर्फ़ आईआईएफ के स्टूडेंट्स के या उनके बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए, बाहर जी नहीं, सब उनकी तरफ आप बोल मम्मी है ना सकते हैं। टीचिंग। जी उनकी मम्मी टीचिंग करती हैं, तो वो नहीं होंगी उस टाइम, तो मैं ही सेंड करूंगी उनका भी। जी, जी, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें, बस कैमराज़ हम ऑन रखवाएँगे, तो बिल्कुल फ़ेयर होना चाहिए कॉम्पिटिशन, ताकि बच्चा खुद कर रहा है वो दिखना जी चाहिए। तो वो सब चीज़ें जी होंगी, जी आप भेज सकती हैं किसी भी नंबर से, नंबर मेंशन कर दें। अगर जी जैसे उनकी मम्मी नहीं जॉइन करेंगी, तो आप, अगर आप ही उनकी केयरटेकर रहेंगी उस टाइम, तो फिर आप अपना ही नंबर वहाँ पे मेंशन करें, जहाँ नंबर का ब्लॉक दिया गया है। अच्छा, तो है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम बता दें, नहीं तो बच्चे नहीं, स्कूल में ना टाइमिंग हो। आप लोगों की सहूलियत के, बच्चों की सहूलियत के स्कूल वगैरह देखकर और दिन और टाइमिंग उसी हिसाब से रखे जाएँगे। गवर्नमेंट हॉलिडे या संडे ही रखा जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और टाइम भी शाम का ही रखा जाएगा, ताकि बच्चे तो सब बच्चे घर फ्री पर ही हों। रहेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो आप अदर सिटीज़, कंट्री, आपके रिलेटिव्स हो, वहाँ तक भी आप इस फ्लायर्स को और इस बात को पहुँचा सकते हैं। क्योंकि इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन से हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर, ना सिर्फ़ ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, इसके अंदर बहुत कुछ होगा बच्चों के लिए इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। सिर्फ़ खुद तक ही महदूद ना रखें, आपके ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे हमारे फैमिली ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं। सब में जी 1-1, 2-2 डाल बार दिया। तो एटलीस्ट फॉरवर्ड करें इसे, और उनसे पर्सनली एक मैसेज करके बात करें
कि बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि कुछ भी नहीं जा रहा है, बच्चा बैठ के घर में पार्टिसिपेट ही करेगा, फीस भी कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस जी, सिर्फ जी। थोड़ा सा उसको भी एंटरटेनमेंट मिलेगा और साथ में उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें कान में ऐसी जाएंगी पेरेंट्स के और बच्चों के इंशाल्लाह, जिनसे उनकी जिंदगी के रुख बदलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आप सबको कोशिश करें, और उसमें आपका भी एक छोटा सा हाथ होगा तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब जारिया मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लोग इस चीज को, हम ये कोई कमर्शियल तो कुछ ऐसा चला नहीं रहा है कि अपन दुनियावी फायदे के लिए करते हैं, ये सब कुछ हम दीनी फायदे के लिए करते हैं। बस नियत इस नियत को रखते हुए आप करेंगी इंशाल्लाह तो बहुत फायदा मिलेगा आप सबको, हम सबको। तो आप इस फ्लायर को ज्यादा से ज्यादा करें और बाहर की एंट्रीज लेकर आएं, ताकि हम हमारे तो आप माशाल्लाह माएँ सारी जुड़ी हैं तो बच्चे तो बहुत कुछ सीख ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं दूसरी माएँ और उनके बच्चे जुड़ें ताकि वो सीखें, क्योंकि आजकल ये चलन बहुत ज़्यादा हो गया है कि बस सिर्फ स्कूल और ये सब कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, बस इसी में ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, और कुरान शरीफ और ठीक है दीनी चीज़ें जो हैं वो साइड में है, छुट्टी करा लो, एग्जाम है तो हाफिज साहब की छुट्टी करा लो, ऐसा सब जो माइंडसेट चल रहा है उसकी वजह से ही हमारे बच्चों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ही वो जो दूसरी चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, जो डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, वो यही चीज़ों का नतीजा है कि वो दीन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें इसी नीयत से सबको जोड़ना है। तो आप लोग आज ही फ्लायर्स को बहुत तेजी से स्प्रेड करें अपने ग्रुप्स पे इंशाल्लाह। बस यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दुआ पढ़ा दें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर, नहीं भाई सॉरी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना वतुब अलैना। बेटा दे रहा है। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।